Hello students, myself Dr. Kalpana Khandelwal. Welcome in gaseous state class. Today we will continue molecular velocities. आणविक वेग। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणु सदैव गतिमान रहते हैं और वे सदैव सीधी रेखा में गति करते हैं, किंतु गति करते समय वे परस्पर एक दूसरे के साथ अवपात की दीवारों के साथ टकराते रहते हैं। टक्करों के कारण इन अणुओं की गति की दिशा तथा इनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है और ऐसा होने से उनकी गति अथवा वेग में भी परिवर्तन आ जाएगा। अतः समस्त अणु भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले होते हैं और भिन्न भिन्न गति से वे चलते हैं। इसे आणविक वेग कहते हैं, जिसे कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। दो gas molecule possess very high velocity and because of collision the velocity of gas molecules change in a very short span, but velocity can be easily calculated from kinetic gas equation. In this unit you will study different types of velocities. Different kind of velocities. Root mean square velocity. Velocity v, which if possessed by each of an n molecule of a gas leads to a correct calculation of total kinetic energy of gas, is known as root mean square velocity. Total kinetic energy half mv square, and for n molecules it is n half mv square. We will proceed to test the validity of the above equation mathematically. One of the total number n contained in a given sample of gas. Let n1 molecules have velocity v1, n2 molecules have velocity v2, and so on. So the n will be equal to n1 plus n2 plus n3 and so on. The total kinetic energy of an n molecule is the sum of kinetic energies of an individual molecules. Thus, kinetic energy will be equal to n1 into half m1 v1 square plus n2 half m2 v2 square and so on. This kinetic energy is equals to half nv square. This is equals to this, or we can take common and cancel out half n half n half half. n v2 square is equals to n1 v1 plus n2 v2 square, और v square is equals to, यहाँ square लगने से रह गया बच्चों, n1 v square n2 v square. Thus v2 square is the mean of square root of velocities of an n molecules in a gas and is termed as mean square velocity. V is equals to n1 v1 square n2 v square divided by n. Here v is the root of mean of square of velocity. N is called root mean square velocity. N is often simply written as RMS velocity. Its value can be calculated. Students यहाँ ध्यान रखना, ये n रह गया है लगने से. V RMS is equals to 3 RT by m. वर्ग मध्य मूल वेग. गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार अणु सदैव गतिशील रहते हैं और आपस में या पात की दीवारों पर टकराने से उनकी दिशा तथा वेग दोनों परिवर्तित हो जाते हैं. अतः ऐसी स्थिति में अणुओं के वेग का निर्धारण करना असंभव होता है, परंतु किसी ताप पर गैस की अतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए उसके अणुओं का वेग ज्ञात होना बहुत आवश्यक है. माना कि गैस में संपूर्ण अणुओं की संख्या n, अणु का द्रव्यमान m, अणुओं का वेग v और u v. गैस की अतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम एन वी स्क्वायर. माना कि n1 अणु का वेग v1, n2 का v2, n3 का v3, और therefore n1 बराबर क्या हो जाएगा, n2 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3. गैसों की संपूर्ण गतिज ऊर्जा अलग अलग अणुओं की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी. अतः हाफ एम एन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम एन वन v1 square half m v2 square half m n3 v3 square and so on. हम half m कॉमन ले लेंगे, ये हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारा बचेगा n v square is equals to n1 v1 square n2 v2 square n3 v square and so on. और हम कह सकते हैं v square is equals to, ये n हमने नीचे लिख दिया, ये अंडर रूट हो गया, तो ये हमारा यहाँ पे u क्या हो गया, v क्या हो गया, वर्ग मध्य मूल वेग कहते हैं. संक्षेप में इसे हम
RMS लिखते हैं। अतः वर्ग मध्य वेग गैस में उपस्थित n अणुओं के वेगों के वर्ग का मध्य का वर्गमूल होता है। Now average velocity. Average velocity. The average velocity is given by the arithmetic mean of different velocities possessed by the molecules of gas at a given temperature. Suppose one molecule is moving with velocity v1, one molecule with velocity v2, third molecule with velocity v3, and so on. Then total velocity will be v1 plus v2 plus v3. Their total number of n molecule will be, then this average velocity will be equal to the sum of the total velocity divided by n. Its value can be calculated as Va is equals to, this is 8 2 RT by m half or under root 2 RT by m. This is average velocity represented by Va. औसत वेग, गैस अणुओं के वेगों का गणितीय औसत वेग अणुओं के औसत वेग कहलाता है। इसे Va द्वारा व्यक्त किया जाता है यदि किसी गैस के अणुओं के वेग क्रमश C1, C2, C3n हो तो अणुओं की संख्या n हो तो औसत वेग को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। Va is equals to C1 plus C2 plus C3 and so on divided by n। यह वर्ग मध्य मूल वेग से भिन्न होता है। दोनों वर्गों में निम्न संबंध होता है। Va is equals to 0.9218 into Vrms। वर्ग मध्य मूल वेग औसत वेग से ज्यादा होता है। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया ये अभी हम आपको बताएंगे, वैसे हमारे कोर्स में नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, velocity possessed by most number of molecule is known as most probable velocity. Most probable velocity means the probability of the molecules having the same speed. Probability of the molecules having the same speed is known as the most probable velocity. It is given by Vmp is given by 8 RT pi by under root. It is found that Vrms is the ratio between these values is this. Vrms is greater than average velocity and that it is most probable velocity and ratio comes out to be this. Students, हमें ये वाली चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। यहाँ देखो रेशियो निकाला है हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमने देखा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें याद रखना है, इट इज अंडर रूट 2 RT by m, अंडर रूट 8 RT by pi m is the average velocity and root mean square velocity is 3 RT by m। यहाँ पे देखो RT 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 by m, RT by m, RT by m is common, हमने इन तीनों को हटा दिया। अंडर रूट 2 8 by pi m and 3 हमने इन तीनों को सॉल्व किया, हमारी वैल्यू ये आई। हम यहाँ से क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू हमारी आ रही है किसकी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, फिर एवरेज वेलोसिटी, फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। हमें कैसे याद रखना है, हमें याद रखना है RAM, राम, राम मतलब R, RMS सबसे ज्यादा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू, फिर A मतलब एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, फिर M मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू। हमें हमेशा ये रिलेशन याद रखना है, RAM मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा, फिर एवरेज वेलोसिटी, फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। प्रथम वेग, गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार अणुओं का वेग प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। किसी दिए गए ताप पर गैस के अधिकतम अणुओं के वेग को प्रथम वेग कहते हैं। इसे अल्फा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संबंध ये देखो, अभी मैंने आपको बताया Va is equals to 8 RT by m हमें याद रखना है औसत वेग, वर्ग मध्य वेग 3 RT by m और प्राकृतिक वेग 2 RT by m। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद रखना है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब एक बात और, हम इस RT को PV से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये क्या है, 1 मोल गैस के लिए है, तो PV RT हमारी इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू RT, तो हम यहाँ पे 8 की RT की 8 इसके क्या लिख सकते हैं हम, PV भी लिख सकते हैं, 8 PV 8 3 PV और
2 PV/m। तो यदि हमारे प्रेशर वाले न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो हम इस तरह से निकालेंगे पीवी, पीवी और पीवी। नाउ ये एक ग्राफ है जो हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड के संबंध में, तो हमारा ग्राफ इस तरह से आता है। यहाँ पे ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है ये क्या है? देखो, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जिस स्पीड, जिनकी वेलोसिटी है, उसे ही हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और ये एवरेज वेलोसिटी मैंने यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि देखो यहाँ पे ये V1, V2, V3 हम यदि ले लें तो अभी हमने निकाला था सबसे ज्यादा होता है हमारी वैल्यू किसकी ज्यादा? R की वैल्यू, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू, मतलब उनकी सबसे ज्यादा स्पीड ज्यादा होगी। तो ये हमारा आ गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो ये इस तरह स्पीड बढ़ रही है, तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी। और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।